जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 7 श्लोक 11। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। काम, वासना और राग अर्थात विषयासक्ति, इन दोनों को घटाकर बलवान लोगों का बल मैं हूँ। और हे भरत श्रेष्ठ, प्राणियों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला काम भी मैं हूँ। अप्राप्त की इच्छा काम है और प्राप्त से लगाव राग है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ। तपस्वियों की जो तपस्या है उसे भी तुम मेरा ही रूप समझो। भूत मात्र में अर्थार्जन के द्वारा धर्म का विपुल संग्रह करने की जो शुद्ध कामना है वह भी आत्मस्वरूप में रमण करने वाला मैं ही हूँ। यह शुद्ध काम यद्यपि सामान्यतः विकारों के प्रवाह के अनुसार इंद्रियों की तृप्ति करने वाला कर्म करता है, तो भी इंद्रियों को उनके धर्म के विरुद्ध नहीं जाने देता। यह काम कर्म संन्यास का टेढ़ा तिरछा रास्ता छोड़कर विधि युक्त कर्माचरण के सहज मार्ग पर लगाता है और नियमितता की मशाल सदा इसके साथ रहती है। जब इस प्रकार सावधानी से काम होने लगता है तब धर्म की पूर्णता हो जाती है और तब संसार का उपभोग करने वाले पुरुष भी सहज ही सहज में मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। वेदों में गाए हुए महत्व के मंडप पर जो काम विश्व की बेल इस प्रकार चढ़ाता है कि उसमें लगने वाली कर्म की शाखा फल भार से झुककर अंत में मोक्ष पर आ लगती है, वह सब प्रकार का और समस्त भूतों का उद्भव करने वाला बीज रूप काम भी मैं योगी श्रेष्ठ परमात्मा ही हूँ। सारांश यही है कि समस्त वस्तुएं मुझ में विस्तार प्राप्त करती हैं, सबका विस्तार मैं ही करता हूँ। Of the strong I am the strength, devoid of desire and attachment, and in all beings I am the desire, unopposed to dharma, O best among the Bharatas. Desire, काम, and attachment, rag, are generally considered as almost synonyms, but there is clear distinction between these two powerful impulses. Kam is desire for what is absent at present in the scheme of our life, and rag is affection for what one has already obtained. The Lord says, I am the strength devoid of desire and attachment. I am desire in the beings, unopposed to dharma. The essential factor in man is the divine consciousness. All actions, thoughts, and ideas entertained by him, which are not contrary to the nature of his divine essence, constitute his dharma. All actions and thoughts that lead him to rediscover his essential divine nature are considered righteous actions, while all activities of the mind and the intellect that take him away from his true divine nature and make him behave as though he is an animal are called unrighteous actions, that is, adharma. The Lord says that I am the burning aspiration, the desire to discover the self, Atman, in an aspirant. Om.
నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ సరస్వతి మహాత్మా శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము అధ్యాయము 7 జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము శ్లోకం 11 బలం బలవతాం చాహం కామరాగ వివర్జితం ధర్మా విరుద్ధో భూతేషు కామోస్మి భరతర్షభ. కామము అంటే వాసన మరియు రాగము అనగా విషయాసక్తి, ఈ రెండిటినీ అణిచివేసే బలవంతుల బలాన్ని నేనే. ఓ భరతశ్రేష్ఠ, ప్రాణుల్లో ధర్మవిరుద్ధము గాని కామమును కూడా నేనే. ఓ భరతశ్రేష్ఠుడు అయిన అర్జున, బలవంతుల బలము బుద్ధిమంతుల బుద్ధియు నేనే. తపస్సుల తపస్సు ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని కూడా నీవు నా స్వరూపంగానే తెలుసుకో. ప్రాణులందు ధనార్జన ద్వారా ధర్మకార్యములను చేయాలనే శుద్ధ కామన ఏదైతే ఉన్నదో అది కూడా ఆత్మస్వరూపం నందు ఆనందించే నేనే అయి ఉన్నాను. సాధారణంగా ఈ శుద్ధ కామము వికారముల ప్రవాహమును అనుసరించి ఇంద్రియములను తృప్తిపరచు పని చేసేదైనప్పటికీ కూడా ఇది ఇంద్రియములను వాడి ధర్మములకు విరుద్ధంగా వెళ్ళనివ్వదు. ఈ కామము కర్మసన్యాసం యొక్క వంకాటింకర దారి విడిచిపెట్టి విధియుక్తమైన అంటే ధర్మబద్ధమైన కర్మాచరణ యొక్క సహజ మార్గంపై చేరుతుంది. మరియు నియమబద్ధము అనేటువంటి దివిటి నిరంతరము దీని వెన్నంటి ఉంటుంది. ఈ విధంగా జాగ్రత్తగా పని జరుగుతున్నప్పుడు ధర్మం పరిపూర్ణమవుతుంది. అప్పుడు ప్రపంచంలోని భోగపురుషుడు కూడా అతి సహజంగా మోక్షానికి అర్హుడవుతాడు. వేదముల్లో కీర్తించబడిన మహత్వ మండపంపైకి కామము విశ్వమనే తీగను ఎక్కించగా దాని నుండి వచ్చిన కర్మ యొక్క శాఖ ఫలభాగంతో వంగి చివరికి మోక్షం వద్దకు చేరుకుంటుంది. సమస్త విధముల సమస్త ప్రాణులను ఉత్పత్తి చేసే బీజరూప కామము ఏదైతే ఉన్నదో ఆ కామము కూడా యోగశ్రేష్ఠుడును పరమాత్ముడైన నేనే. సారాంశం ఏమిటంటే సమస్త వస్తువులు నా నుండే విస్తరించబడుతున్నవి. అన్నిటి వ్యాప్తిని నేనే చేయుచున్నాను. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അദ്ധ്യായം 7 ശ്ലോകം 11. ആഗ്രഹവും ആസക്തിയും പൊതുവെ പര്യായങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ശക്തമായ പ്രേരണകൾക്കിടയിൽ വ്യക്തമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിത പദ്ധതിയിൽ നിലവിലില്ലാത്തതിനായുള്ള ആഗ്രഹമാണ് കാമം. രാഗം എന്നത് ഒരാൾ ഇതിനകം നേടിയതിനായുള്ള വാത്സല്യമാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആഗ്രഹവും ആസക്തിയുമില്ലാത്ത ശക്തിയാണ് ഞാൻ. ധർമ്മത്തിന് എതിരല്ലാത്ത ജീവികളിലെ ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ. മനുഷ്യനിലെ ഒരു അനിവാര്യ ഘടകം ദിവ്യബോധമാണ്. അവൻ്റെ ദിവ്യസത്തയുടെ സ്വഭാവത്തിന് വിരുദ്ധമല്ലാത്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും അവൻ്റെ ധർമ്മത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. അവൻ്റെ അനിവാര്യമായ ദിവ്യ സ്വഭാവം വീണ്ടും കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്ക് അവനെ നയിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചിന്തകളും നീതിപൂർവകമായ പ്രവൃത്തികളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതേസമയം മനസ്സിൻ്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അവൻ്റെ യഥാർത്ഥ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നകറ്റി ഒരു മൃഗത്തെപ്പോലെ പെരുമാറാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനെയും അനീതിപരമായ പ്രവൃത്തികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതായത് അധർമ്മം. ഒരു സാധകൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മീയത കണ്ടെത്താനുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന ജ്വലിക്കുന്ന അഭിലാഷമാണ് താൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. जय गुरुदेव, जय प्रशरणम. अध्याय 7 श्लोक 11. मी वासना आणि राग म्हणजेच इंद्रिय आसक्ती कमी करून बलवान लोकांचे बल आहे. आणि हे महान भारता, मी तोही आहे जो प्राण्यांमधील धर्माच्या विरोधात जात नाही. अर्थात अप्राप्त लोकांची इच्छाच म्हणजे काम आहे आणि साध्या गोष्टीवरील आसक्ती म्हणजे राग आहे. हे भारताच्या महान अर्जुना, मी बलवानांचे बल आणि ज्ञानी लोकांची बुद्धी आहे. तू तपस्वींनी केलेल्या तपस्येलाही माझे स्वरूप मान.
मी तो आहे जो आत्म्याच्या रूपात आनंदित होतो. केवळ अस्तित्वात पैसे कमावण्याच्या स्वरूपात संपत्ती जमा करण्याची शुद्ध ही पण इच्छाच आहे. जरीही शुद्ध इच्छा सामान्यतः वासनेच्या प्रवाहानुसार इंद्रियांना तृप्त करणारी कृती करते, तरी पण ती इंद्रियांना त्याच्या धर्माच्या विरोधात जाऊ देत नाही. ही इच्छा कर्मत्यागाचा वाकडा मार्ग सोडून व्यक्तीला कायदेशीर कर्म करण्याच्या सोप्या मार्गावर आणते आणि नियमिततेची मशाल नेहमीच तिच्यासोबत राहते. जेव्हा अशा काळजीपूर्वक काम केले जाते तेव्हा धर्म परिपूर्ण होतो आणि नंतर जगाचा आनंद घेणारे देखील सहजपणे मोक्ष मिळवण्यास पात्र होतात. वेदामध्ये गायलेल्या महत्त्वाच्या मंडपात जगाच्या वेलीवर चढणाऱ्याची इच्छा अशा प्रकारे की त्यातून वाढणारी इच्छा त्याच्या फळाच्या वजनाखाली वाकते आणि शेवटी मोक्ष मिळते. ती इच्छा सर्व प्रकारच्या प्राण्यांना आणि सर्व प्राण्यांना जन्म देणारे बीजरूप मी देखील आहे, अर्थात योगींचा परमात्मा. थोडक्यात सर्व गोष्टीमध्ये माझ्यातच विस्तारतात. मीच सर्व काही विस्तारित करणार आहे. बलवानांची मीच इच्छा आहे आणि आसक्तीरहित शक्ती आहे आणि सर्व प्राण्यांमध्ये मीच इच्छा आहे. धर्माचा विरोध न करता हे भरता हेच सर्वोत्तम आहे. काम आणि आसक्ती हे सर्वसाधारणपणे समानार्थी शब्द मानले जातात, परंतु या दोन शक्तिशाली आवेगांमध्ये एक स्पष्ट फरक आहे. काम म्हणजे आपल्या जीवनाच्या रचनेत सध्या जो अनुपस्थित आहे त्याची इच्छा, आणि राग म्हणजे एखाद्याला जे आधीच मिळालेले आहे त्याबद्दलची आपुलकी. भगवान म्हणतात, मी इच्छा आणि आसक्तीरहित शक्ती आहे. मी प्राण्यांमध्ये इच्छा आहे जी की धर्माचा विरोध नाही करत. मनुष्यामध्ये आवश्यक घटक म्हणजे दैवी चेतना. त्याच्या दैवी स्वाराच्या स्वरूपात विरुद्ध नसलेल्या त्याच्याद्वारे रचलेल्या सर्व कृती, विचार आणि कल्पना त्याचा धर्म बनवतात. त्याला त्याच्या आवश्यक दैवी स्वरूपाचा पुन्हा शोध घेण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या सर्व कृती आणि विचारांना धार्मिक कृत्ये असे मानले जाते. तर मन आणि बुद्धीची सर्व कृती ज्या त्याला त्याच्या खऱ्या दैवीपासून आणि स्वरूपापासून दूर नेतात आणि त्याला एखाद्या प्राण्याप्रमाणेच वागवितात, त्यांना अनान्य कृत्ये म्हणजेच अधर्म म्हणतात. भगवान म्हणतात की मी एका साधकामध्ये स्वतःला आत्मा शोधण्याची ज्वलंत ही अशी आकांक्षा आहे. जय गुरुदेव. बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ. काम आ राग माने विषयासक्ति एहि दुनू के हटा कऽ जे बलवान लोक सबके शुद्ध बोल रहैत अछि से हम छी. आ हे भरत श्रेष्ठ, प्राणी सबमे जे काज धर्म के विरुद्ध नहीं जाइत अछि सेहो हम ही छी. आ अंग्रेजी भाषा के अनुसार अप्राप्त वस्तु के इच्छा काम कहल जाइत अछि आ प्राप्त वस्तु सँ लगाव राग कहल जाइत अछि. हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, बलवान सबके बल आ बुद्धिमान सबके बुद्धि हमही छी. तपस्वी सबके जे तपस्या अछि ओकरो अहाँ हमरे रूप बुझू. समस्त भूत प्राणी सबमे अर्थार्जनसँ धर्म के विपुल संचय करबाक जे शुद्ध कामना होइत अछि ओहो आत्मस्वरूप में रमन करनिहार हमही छी. इस शुद्ध काम ओना तऽ सामान्य रूपेण विकार के प्रवाह अनुसार इंद्रिय सबके तृप्त करबाक कर्म करैत अछि. तैयो इंद्रिय सबके धर्म में विरुद्ध नहीं जाय दैत अछि. ई काम कर्म संन्यास के टेढ़ मेढ़ बाट छोड़ि कऽ विधिसँ कर्माचरण के सहज बाट पर लगबैत अछि. अनियमितता के मशाल सदा एकर संगे रहैत अछि. जखन एहि प्रकार सावधानीसँ काज हुअ लगैत अछि तखन धर्म के पूर्णता होइत अछि. तखन संसार के उपभोग करयवला पुरुष सेहो सहजे मोक्ष के अधिकारी भऽ जाइत अछि. वेद सबमे गाओल महिमा के मंडप
पर जे काम विश्व लत्ती के एना चढ़बैत अछि जे ओहिमे लागल कर्म के साख फल सँ झुकि कऽ अंततः मोक्ष पर लगैत अछि, जे समस्त प्रकार के आ समस्त भूत सब में उत्पत्ति करऽ वाला बिया रूप काजो हम श्रेष्ठ योगी परमात्मे छी। सारांश ई अछि जे समस्त वस्तु सब हमरा में विस्तार पबैत अछि आ सब के विस्तार हम ही करैत छी। अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।